the question remains the same variant that we are going to do today. In this, basically, we are going to talk about this class intervals. Right. Till now, the class intervals were given to you like this: 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400. Right. Let us say if a number is 250, or let us say the number is 350. So what do you think where it will be counted? Because 350 is there in this class interval also, 300 to 350, and then 350 is there in this class interval also, 350 to 400. So if there is a number 350, where will it get counted? फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में मतलब नहीं सॉरी सेकंड वाले में काउंट होगा लास्ट को इंक्लूड नहीं करते Right. So basically, it will get counted in this second wala class interval 350 to 400. Right. That means this series, this is an example of an exclusive series. Exclusive series, why? Because it excludes the upper limit. Right. तो मैं अगर इसको यहाँ पे और modify कर सकती हूँ in the brackets. I can write it is an example of exclusive series. Is it clear to everyone why it's called an exclusive series? Because we are excluding the last number or the upper limit. Right. So the word 350 will be there in the class interval 350 to 400 rather than being in 300 to 350. Clear है सबको? यस मैम Others? Ma'am. Yes, madam. So this is an example of exclusive series. You may be asked to do it to prepare an inclusive series, right? So when you're preparing an inclusive series, your class interval will be 250 to 299, right? And then it will be 300 to 349, right? And then it will be 350 to 399. Oh, sorry. 399. Clear है सबको? Is it clear? आपने भी क्या किया? इंक्लूसिव सीरीज का इस एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में बना के दिखाया कि अगर मैं इंक्लूसिव सीरीज बना रही होती तो मेरी सीरीज फिर मैं इस तरीके से लिखती. ठीक है. But everything other than this, everything remains the same. Frequency will be calculated in a similar fashion. Everything will remain the same. Right, but the way you're going to write your class intervals, it will get changed. So next it will become 400 to 449. Clear है सबको? And then it will become 452. Last वाली you can write 500. मैम इसमें लास्ट क्यों लिखा Sorry? इसमें लास्ट वाला क्यों लिखा क्योंकि हमने नंबर्स जो हैं वो जनरेट किए थे इस केस में between 250 to 500. तो ऑब्वियसली एक नंबर के लिए एक अलग क्लास इंटरवल नहीं बनाना है, वो लास्ट है. लास्ट वाला जो है ऑप्शन, उसमें लास्ट जो आपका क्लास इंटरवल में उसमें आप 500 ले लो. बट कैलकुलेशन नहीं, वो उस केस में ले लेगा उसी में, बिकॉज इट नोज दैट देयर इज नो अदर सीरीज आफ्टर दिस. तो फिर ये तो लिमिटेशन हुआ ना क्योंकि मैम हम एक्चुअल मैनुअल पहले वाले में भी तो हम 500 तक ही बना रहे थे. जब हम जानते थे कि एक्सक्लूसिव सीरीज है तब भी हमने 500 टू 550 नहीं बनाया ना. जो लास्ट वाला होता है उसको ऐसे ही हम करेंगे क्लोज. लेकिन हाँ एक्सेल लेकिन उसको इंक्लूड करके कैलकुलेशन करेगा. हाँ, तभी तो देखो पहले भी उसने इंक्लूड किया होगा तभी सम 100 आया हमारा. ओके मैम. यस, क्लियर है सबको इंक्लूसिव सीरीज? Yes, ma'am.
ठीक है, तो एक वेरिएंट ये है, अभी आई गिव यू टाइम, यू कैन प्रैक्टिस इंक्लूसिव सीरीज एज वेल. Other than that, you can also have an open-ended series. This is a closed-ended series. Why? Because the ends are mentioned to you. The starting class intervals, or also the lower limit of the class interval is also mentioned to you, and the upper limit of the class interval is also mentioned. So when both the lower and the upper limits are mentioned, we call it a closed-ended series, right? On the other hand, when either of the two, right, let us say the lower limit is not mentioned of a class interval, or if the upper limit is not mentioned, we call it an open-ended series, right? So in case of an open-ended series, it will be given to you like this. जैसे first class interval आपको ऐसे दिया हो सकता है below 300. So obviously below 300 means 250 to 300, because we've generated numbers between 250 to 300, right? And in case of the last limit, it could be written as 450 and above, right? तो उस केस में हमें पता है obviously it is the upper limit is going to be 450. But question में आपको कैसे दिया होगा? In the question it will be given to you like this. Let us say I'm again converting it into a close-ended series, and so the series is given to you something like this: below 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 and above. So this is first of all an example of open-ended exclusive series, right? Exclusive है और open-ended है, right? तो जब भी आपको question में it's given to you like this, because many times in the question the class intervals are already mentioned to you, right? अभी तक तो क्या कर रहे थे, हम खुद ही अज्यूम कर रहे थे, और आई वाज गिविंग यू द नंबर कि मुझे इतने क्लास इंटरवल्स चाहिए. इस केस में अगर आपको क्लास इंटरवल्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, then in that case first of all you will write the class intervals as it is. तो आप heading डालेंगे class intervals और आप उसको as it is लिखेंगे. And then in this case you will have to make another new column by the name bins array, right? Because you know that you need bins array for calculation of frequency. और उस केस में आप जो है अपर लिमिट को सिलेक्ट करते हैं. अब आप अपर लिमिट में अगर अबव वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अबव इज अ टेक्स्ट वर्ड. फ्रीक्वेंसी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड अबव, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी आपको एरर शो कर देगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में एक्सेल आपको एरर शो करेगा. तो इसलिए अलग से बिन्स एरे का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, एंड देन यू जस्ट राइट द वर्ड अगेन 300, 350, 400, 450, and we know 450 and above में word 500 ही होगा, because the numbers have been generated till 500 only. ठीक है, देखो अगर ये बिलो वर्ड से हमारी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नॉर्मली वी डू नॉट यूज द लोअर लिमिट्स, राइट? सिर्फ आपको यहाँ पे वर्ड बिलो की जगह आपको लोअर लिमिट चाहिए होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स. वो आप खुद फॉर्मूला में अपने आप लिख के भी कर सकते हैं. मेजरली आपको चाहिए बिन्स एरे एज अ डिफरेंट कॉलम, बिकॉज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू नीड द अपर लिमिट्स. Is it clear to everyone? Yes, is it clear? अब वाला कॉलम कैसे बता दीजिए. कौन सा वाला? above वाला? यस मैम. सिंपल यही मैं कह रही हूँ कि अगर 450 एंड above दिया हुआ है तो उस केस में आपको बिन्स एरे का एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा. Why? Because of frequency calculation you need the upper limit, right? अगर मान लो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ और अगर मैंने बिन्स एरे नहीं बनाया है तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये देखो. मैंने सिलेक्ट किया, लिखा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट ओपन किया, डेटा सिलेक्ट किया अपना, दिस इज द डेटा एरे, राइट? एंड देन कॉमा बिन्स एरे. अब मान लो अगर मैं बिन्स एरे का अलग से कॉलम नहीं बनाती, यहाँ तो मैंने आपको बना के दिखा दिया. इफ आई जस्ट सिलेक्ट वॉट एवर इज गिवन टू अस, राइट, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट एंड आई प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. तो इस केस में ऑल्दो इट हैज शोन, बिकॉज उसने क्या किया 450 एंड अबव की
450 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज थी वो अपने आप फाइंड आउट कर दी, बिकॉज इट वाज द लास्ट लिमिट. बट आइडियली यू शुड प्रिपेयर बिन्स अरे. किसी किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, राइट. जैसे मेरे सिस्टम ने तो सीधा 450 एंड अबव, देखो वैल्यूज सेम है जो यहाँ थी, 26, 16, 21, 15, 22 वैल्यूज तो उसने उठा ली. बट यू शुड नॉट टेक दिस रिस्क. यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर अ कॉलम कॉल्ड बिन्स एरे. इनफैक्ट कई बुक्स में तो जब ये प्रॉपर होता है ना, जब ये क्लोज एंडेड होता है, जब अपर लिमिट भी आपको मेंशन्ड होती है क्वेश्चन में, फिर भी अलग से लोग बिन्स एरे बनाते हैं, right? Because they write the formula of frequency and then they show that this is the column of bins array. So in this case, you need to prepare bins array alag se, right, as an individual column. मैम होता क्या है? Upper मतलब limit, upper limit. वो आप ये क्लासेस एक्सेल की पहले कैलकुलेशन में हमें क्लासेस बनाना देखोगे पड़ता है. तो समझ आ जाएगा, ओके because you have not attended. So ओके. ठीक है. Yes, clear to everyone. Yes, ma'am. So now I'm Yes, giving you a ma'am. question. Ji? Yes, somebody is asking something. Okay, I'm giving you a question to practice. Right. In the same question, you are supposed to prepare two columns, right? Two times जो है आप frequency distribution analysis करेंगे. What you do is you generate 100 random numbers between take it 200 to 500, right? ओके. और एक में आप जो है अपनी सीरीज बनाएंगे, दैट विल बी 200 टू 299, देन 300 टू, नहीं कम हो जाएगी, 200 टू 249 कर लो, 249, देन 250 टू 299, then 300 to 349, then 350 to 399 and so on till 500. ठीक है. एक सीरीज ये प्रैक्टिस करो, और दूसरी सीरीज आपको दी हुई है, दैट इज बिलो 250, then you have 250 to 300, then you have 300 to 350, then you have 350 to 400, then you have 400 to 450, and finally 450 and above. जी रिपीट. दोनों केसेस में हमें बिन से एरे बनाना है ना? नहीं, इस केस में बनाने की जरूरत नहीं है. बिन एरे यही होगा 249, 299, 349. इसमें तो आपको अपर लिमिट्स दी हुई है ना. बिन एरे उस केस में बनाते हैं जब एक किसी एक क्लास इंटरवल में अपर लिमिट मिसिंग है, जैसे एंड अबव वर्ड है तो इसमें अपर लिमिट मिसिंग है ना, तो इस केस में आप बनाओ. ओके बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जल्दी से करो पूरा क्वेश्चन. मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, everything you have to find out. You have to generate the pie chart as well. के बाद फिर ये frequency खत्म हो जाएगा. Then I'll start a new topic. Do it and share the pic in the group. मैम इसमें इंडिविजुअल सीरीज का तो नहीं बनाना ना? नहीं, इंडिविजुअल सीरीज तो जनरेट तो करनी पड़ेगी. सिर्फ दो ही जो चीजें फाइंड आउट करनी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. कर लो फाइंड आउट. इट विल हार्डली टेक अ मिनट. मैम एक आपने चोरी वाली क्लास भी दी थी ना, जो आधी मतलब आधी रितिका ने मुझे भेजी थी, बट उसमें आपने कुछ मेजर कराया था. पढ़ लेना, मैं टॉपिक भेज दूंगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना. हाँ ओके मैम. ठीक है. So I'll be back in 2 minutes. तब तक you people start doing. मैम आप हाँ क्योंकि क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया हाँ हमने. हाँ.
Yes, are you able to do it? हाँ मैम जो लास्ट वाली लाइन है उसमें वो 499 होगा ना? हाँ जी, नहीं 500 ले लो उसको। ओके। Yes, hurry up, do it fast.
मैम इसमें ना फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मैं 3 कीज दबा रही हूँ लेकिन बार बार सिर्फ फर्स्ट वाले का हो रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैं हर एक के नहीं मैं नहीं, फ्रिक्वेंसी कर पूरा सिलेक्ट किया था फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने से पहले? क्या मैम? पूरा वो कॉलम सिलेक्ट किया था जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करनी है? यस मैम। फिर तो नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। इक्वल टू फ्रीक्वेंसी पूरा लिखा है? यस मैम। दोबारा करके देखो एक बारी फिर। एक्सक्यूज मी और मैम, गलत नहीं कर सकते इंक्लूसिव हो। के केस में मेरा एक्स में ग्रीन मार्क आ रहा है कैलकुलेशन में। किसके अगेंस्ट आ रहा है ग्रीन मार्क? एक्स एवरेज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव? यस मैम। सेंड मी द पिक। ओके मैम। Okay, somebody has sent. Let me check. ठीक है, जिसने भेजी है पिक, the name is not there. Okay. मैंने भी देखी। हाँ स्पर्श, ठीक है। जो एक्स कैलकुलेशन है वो कैसे किया है फर्स्ट इंटरवल के लिए? मैम मैंने बिन सारे और लोअर इंटरवल ले लिया था। नहीं, जैसे फर्स्ट वाले में तो लोअर इंटरवल की वैल्यू नहीं दी हुई ना, फर्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ। तो जैसे क्या? मैंने बिन सारे का वो कॉलम बनाया हुआ है ना, उसमें हाँ से ले लिया था मैंने 250 और 200। 250 डिवाइड बाय 200, 250 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, ऐसे कर हाँ, लिया वही था। मैं पूछ रही हूँ कि उसमें हमने प्लस 200 खुद लिखा है ना। नहीं मैम, वो क्लास इंटरवल जो पहले मैंने बनाया हुआ है वो तो नॉर्मल बनाया अच्छा, हुआ है, जो ओके ओके ओके। इंक्लूसिव वाला।
और एक ठीक है। मैम बेन सारे का कॉलम बनाया हुआ है ना, तो मैंने जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है तो उसे 200 ले लिया, और बेन सारे में से 250, और फिर लास्ट में वही बेन सारे में से 500 और उसमें 450। ठीक है। ठीक है। ओके। मैम हमें ओनली क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी भेजनी है ना? नहीं, एक्स वैल्यू भी तो निकालोगे तभी तो एफ एक्स निकलेगा। उस पे क्लिक करके देखो, ग्रीन उस पे क्यों आ रहा है? उस पे आएगा मैम ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी तो हो गया अब सही। ओके, 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है? मैम जो हमारा 200 to 249 था उसमें भी एक्स वाई मिड वैल्यू करके निकालना है। हाँ जी। एक्स तो है ही, मिड वैल्यू तो वही रहेगा। सिर्फ ये अलग क्लास है, अदर मतलब इन अ वे ऑफ डिफरेंट वेराइटी है। अदरवाइज ऑल द थिंग्स दे रिमेन द सेम। Now it's clear now. Thank you. Okay. In some books, even this is not mentioned, inclusive, exclusive, right? Like I cannot find it in your book, but still ठीक है, एक आपको एक और चीज पता चल गई। मैम एक बार आप एक्स निकाल लेंगे इन दोनों सीरीज में प्लीज। क्या बताऊं? मैम इस 200 to 249 वाले में जो एक्स है वो हमारा 224.5 आ रहा है। राइट, ठीक है, ठीक है, यही आएगा। बट जो दूसरी सीरीज है जिसमें बिलो 250 है उसके अंदर एक्स की वैल्यू ना आ नहीं रही है फर्स्ट और लास्ट कॉलम में। वो फर्स्ट नहीं और आएगी, वही तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉलम के लिए आपको लास्ट कॉलम की तो आ जाएगी, क्योंकि लास्ट कॉलम में आप बिन सेरे कंप्लीट कर रहे हो ना, तो लास्ट वाली क्लास इंटरवल का आप अपर लिमिट खुद मेंशन कर रहे हो 500। ठीक है, तो लास्ट वाले की तो आ जाएगी, फर्स्ट वाले में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लोअर लिमिट में टेक्स्ट वर्ड लिखा है बिलो। तो उस केस में आप खुद अपने आप 200 वैल्यू डाल दो। यू टेक द एवरेज ऑफ 200 एंड 250, तो आप खुद ही लिख लो इक्वल टू सम ऑफ 200 एंड 250 डिवाइड बाय 2। ठीक है। ओके मैम। यस, और कोई डाउट? इंक्लूसिव वाला तो हो गया होगा, है नहीं सबका अब तक? और पाई चार्ट भी बनाना है उसके बाद इसका। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, तभी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और जैसे इतना टाइम लग रहा है, इतना नहीं लगना चाहिए था, तो अभी प्रैक्टिस कम हो गई है सब लोगों की। तो जो पहले भी क्वेश्चन कर लिया हमने, जैसे रिग्रेशन कर लिया है, उसको भी प्रैक्टिस करो। आज फ्रीक्वेंसी, 2 मेजर टॉपिक्स आपके आज कंप्लीट हो गए, एंड विल स्टार्ट विद द थर्ड वन। मैम बस मैंने चेक डाला है फिलहाल, मैंने एक फोटो भेजी आप चेक कर लो प्लीज। हाँ, मैं
ठीक है, इट्स करेक्ट। मतलब मीन वीन कुछ कैलकुलेट थोड़ा ना करना था हम्म। मैम, नहीं, अभी अभी मीन। तक तो ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन करो, एफ एक्स स्क्वायर सब कुछ कैलकुलेट करना है। ओके जितना मैम। आपने भेजा है वो ठीक है, क्लास इंटरवल एंड ऑल दैट इज करेक्ट। यस मेगा, इट्स करेक्ट। मेगा कर्टोसिस और स्क्यूनेस इंडिविजुअल सीरीज का नहीं, कंटिन्यूस सीरीज का निकालना। ओके मैम। मतलब ऑल दो आंसर वही रहेगा, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसमें आप बेसिकली अपना रेंज ही लेते हैं पूरा, बट स्टिल इसको वहां पे लिख दो उसके डेटा के साथ, कंटिन्यूस वाले डेटा। डन।
Yes, hurry up. मैम हाँ जी। मेरी फ्रीक्वेंसी 100 नहीं आ रही। किस वाले केस में? हम दोनों केसेस में ही 100 नहीं आ रही। 100 नंबर्स जनरेट भी किए, एक बार चेक करो, काउंट करो। I'll be back in a minute, huh?
मैम मैंने भेज दिया, आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, एनी डाउट? मेरी एक्सक्लूसिव वाली तो ठीक हो गई, जो उसकी नेक्स्ट वाली आपने दी है ना बिलो 250, उसमें फ्रीक्वेंसी गलत आ रही है, 100 नहीं आ रही। एक्सक्लूसिव वाली में हम बिलो 250 वाली है। उसमें बिन सर्वे का कॉलम बनाया दोबारा? यस मैम। पिक भेजो, मैं देखती हूँ। मैम मैंने व्हाट्सएप पे पिक भेज दिया, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, मैं देखती हूँ। ठीक लग रहा है। ठीक है तनिका। ओके मैम। मैम और कुछ ऐड तो नहीं करना ना? नहीं, इंडिविजुअल सीरीज का भी निकालो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके मैम। मैम मैंने भेज दिया है, एक बार आप देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है, तभी वो ग्रीन साइन आ रहा है। एक बार दोबारा कैलकुलेट करो उसको हटा के। ओके मैम। हरी आप 15-20 मिनट्स का टॉपिक था, 1 घंटा लगा दिया तुम लोगों ने। मैम स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए कोई फॉर्मूला अलग है क्या आपका? हाँ हाँ, बताया तो था, STDEV। यस, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, लिखते रहा करो वहां पे ना फॉर्मूला। जो आप अपने अपनी फाइल सेव कर रहे हो, हर जगह वहां पे फॉर्मूला लिख लो कि कैसे निकाला था। जैसे यहाँ पे मीन निकाला है, तो मीन कैसे निकाला था, इक्वल टू एवरेज यूज करके। तो वहां लिख लो एवरेज, और ब्रैकेट में हमने सारे नंबर्स लिए थे। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला था STDEV, एंड देन ब्रैकेट में वी टुक ऑल द नंबर्स। करेक्ट हो गया। ठीक है। हाँ जी, यस हो गया। कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक? यस मैम। Others, tell me. Done? यस मैम। Okay. पिक तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ने ही भेजी है। चलो फिर मैं करवा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक। Okay, your next topic, another very important topic, that is your loan and lease statement. ठीक है? So let me open a new file for you people. So loan and lease statement. In loan and lease statement, basically we are going to talk about and we are going to find out that if I want to prepare complete analysis, or if I want to perform complete analysis of what would be the amount of installment I'm supposed to pay, the interest I'm supposed to pay, all these things, then that can be done using Excel. Okay. So in loan and lease statement, just a minute. यानी बोल्ड पे हैंग क्यों हो जाता है? Okay.
So in loan and lease statements, a few things will be given to you, very few things, just 3 or 4 things. And then on the basis of that, you are supposed to perform the entire analysis. So the things that would be mentioned in the question, they are the loan amount will be given to you, okay? The tenure will be given to you, and the rate will be given to you, rate of interest. Right, I hope you understand all the three terms. Loan amount refers to the amount of loan that you've taken. Right. Tenure means for how long you have taken the loan, and ROI means the rate of interest at which you have taken the loan. Clear? Yes, ma'am. Okay, so let us say I've taken a loan of 5 lakh rupees. So even if in the question, if it is mentioned like 5L, ठीक है, अगर 5 lakh दिया हुआ है, या if it is mentioned like this, then in that case you are supposed to write it down in the form of a number, क्योंकि इसमें क्या है, ये टेक्स्ट है, तो इस पे कई सारे formulas apply नहीं होंगे. In this case, when you will convert it into a number, then only it will Excel will be able to perform a number of functions on that. Clear? First point. तो अगर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन भी है, converted into a number. Okay, ma'am. Tenure में talks about for how long you've taken the loan. Let us say I've taken the loan for 15 years. So again, this is very, very important thing. You're not going to write 15 years in one cell, right? Because if you write 15 years together, what will happen? It will make it a combination of a text and a number. As a result, it will become difficult for Excel to do the analysis on that. That is why years को जो है अलग cell में लिखना है and 15 को अलग cell पे लिखना है. This is very, very important. This is something you won't find specifically written in a book. That is why जो students attend करते हैं, they know the difference कि हम क्यों अलग लिख रहे हैं. Similarly, for rate of interest, let us say the rate of interest is 10% per annum. So again, a per annum 10% के साथ नहीं लिखना है. You have to write it separately. I hope the logic is clear why we have written it separately. Yes, मेरे को ma'am. दोबारा दीजिए मेरी वॉइस. यही रीजन है कि अगर आप दोनों चीजों को इकट्ठे लिखोगे एक सेल में, तो यू आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट एंड अ नंबर. As a result, Excel might do the analysis wrong in that case. So what we have done is we've mentioned them in 2 cells. As a result, we have separated number from the text element. Okay. Okay. Then this was the main thing. So these are the 3 things that would be given to you in the question. Other than that, something like this could also be given to you. For example, ऐसे दिया हो सकता है amount. Amount is, let us say 60 lakhs या 6 lakh ले लेते हैं. And something like this could be given to you, down payment. You understand the meaning of the term down payment? Down payment is 1 lakh. ठीक है. तो उस केस में अगर आपको अमाउंट और डाउन पेमेंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उन दोनों का डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू आर गोइंग टू टेक. ठीक है. तो जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है, यू हैव बॉट अ न्यू कार फॉर ₹6 lakh after making a down payment of 1 lakh and getting the remaining amount financed from bank at 10% rate of interest per annum for 15 years. तो ऐसे लैंग्वेज दी होगी क्वेश्चन में. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. So you'll say amount, your value of car लिख सकते हो 6 lakh, डाउन पेमेंट 1 lakh, और अमाउंट में अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, खुद कैलकुलेशन नहीं करनी है. Although we know that amount is going to be 5 lakh, you should make, whenever possible, you should apply formulas so that some other time if I want to change the values, let us say डाउन पेमेंट की वैल्यू में 1 लाख की जगह 50,000 करना चाहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोन अमाउंट भी चेंज हो जाएगा. बट अगर आप खुद अपने हाथ से लिखोगे तो उस केस में वो चेंजेस नहीं करेगा. सो व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू यू, यू शुड ऑलवेज टेक अमाउंट माइनस द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट एंड प्रेस एंटर. क्लियर है? क्लियर है? अब इस केस में अगर मान लो मैं इसको 50,000 भी कर देती हूँ, तो अपने आप फॉर्मूला चेंज हो गया. अगर मैं 5 लाख खुद लिखती तो फिर उस केस में ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन मेरे हाथ से निकल जाता. ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब मेरे लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, लोन अमाउंट, टेन्योर एंड आरओआई. अब जो है मुझे लोन एंड लीज स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. So for loan and lease statement, you have few things.
like you have your serial number, ठीक है, या इसको आप टाइम भी बोल सकते हो, कितने टाइम तक आपका लोन है, इट्स अप टू यू, टाइम लिखना चाहो टाइम लिख दो, सीरियल नंबर लिखना चाहो सीरियल नंबर लिख दो. देन यू हैव योर ओपनिंग बैलेंस, देन यू हैव द इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, इंस्टॉलमेंट, एंड देन यू हैव योर क्लोजिंग बैलेंस. आपको जो है ये चीजें फाइंड आउट करनी है. तो मेरा 15 years का लोन है, तो ऑब्वियसली माय टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी टिल 15. Every year I'm making a payment, and for 15 years I'm supposed to make this payment. So I'm going to drag it till 15, right? All of you, please do till here, because after this we have now formulas. So itna karo. हो जाए तो let me know. Done, ma'am. Okay. मैम डन. Okay. I'm done. Okay. Others have you? Okay. So now every year we want the opening balance, right? Then we'll calculate the interest and then the amount of installment, and then we'll find out the closing balance. So obviously in the first year, your opening balance is nothing but the amount of loan that you have to pay. Yes or no? Yes, ma'am. पहले साल में तो पूरा की पूरा ही अमाउंट पे करना है ना, तो आपने इक्वल टू लेके जहां पे आपने लोन अमाउंट लिखा था वहां का रेफरेंस दे दिया. Done. I'm pressing enter. मैम एक बार और दिखा दीजिए. कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू लिखा और जहाँ पे लोन अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लिया सेल. पहले साल में तो पूरा की पूरा लोन अमाउंट पे करना है ना, कुछ भी पेमेंट नहीं हुई अभी, तो ओपनिंग बैलेंस पूरा की पूरा लोन अमाउंट होगा. यस मैम. ठीक है, so we have written equal to and I've taken the reference of the cell where the loan amount is mentioned. Done. And then I press enter. Next is your interest calculation.
right? Now in interest calculation, basically we have to find out what is the amount of interest to be paid. So obviously your interest is paid on your opening balance, Yes, right? ma'am. तो इस केस में हम क्या लेंगे? Equal to your opening balance multiplied with your rate of interest. Opening balance B6, opening balance multiplied with your rate of interest, और rate of interest को fix कर दें. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. because opening balance will change every time, but your rate of interest will not change. I'm done. Okay. कर दूं प्रेस सेंटर अगर सबने देख लिया तो? Yes, ma'am, done. Okay. So as you can see 5,50,000 पे 10% हो गया आपका 55,000. ठीक है. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट. ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इंस्टॉलमेंट जो है आपकी एक ही बारी निकलती है. इंस्टॉलमेंट डजंट गेट चेंज्ड एवरी टाइम. We have few formulas for calculating installment, right? The installment is calculated considering the amount of loan and the rate of interest and the tenure, right? Before I talk about calculation of installment, you must understand the term installment, right? Installment is the payment that you're making every year or after a regular interval, um, as a payment against the loan that you have taken. Okay. Your installment comprises of two parts, right? It has a principal component and it has an interest component. Here, installment is your principal amount plus your interest amount. ये तो सबको पता ही है, राइट? Yes, इनिशियली ma'am. आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है और धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ता जाता है इंस्टॉलमेंट में, और इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल, इट्स जस्ट फॉर योर knowledge purposes that I talked about these two things, right? Interest and principal. तो एक्सेल में हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हैं जिसमें से हम चाहें तो तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं. हम एक टोटल इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टोटल इंस्टॉलमेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट. देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द प्रिंसिपल कंपोनेंट and then you can find out the interest component. The formula, basic formula is PMT. PMT gives you the installment component, right? Similarly, if you want to find out only the principal component, P principal starts from the word P, तो इस केस में PMT के आगे P लगा दो, तो उस केस में फॉर्मूला हो गया आपका PPMT, राइट? एंड इंटरेस्ट स्टार्ट्स विद द वर्ड I, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए PMT के आगे I लगा दो, IPMT. ठीक है. तो अगर खाली मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो मैं PMT लिखूंगी. अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है अपनी इंस्टॉलमेंट का तो मैं PPMT लिखूंगी, और अगर मुझे इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालना है तो मैं IPMT. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मुझे मैं एक ही बार इंस्टॉलमेंट निकाल लेती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ROI के नीचे एक नया हेडिंग आई हैव पुट, दैट इज बाय द नेम इंस्टॉलमेंट. And now I'm going to use the formula equal to PMT. राइट, अब आप देखो इक्वल टू PMT लिखते ही यहाँ पे फॉर्मूला का मीनिंग आ गया. इट कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट ऑफ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, राइट? सो आई एम राइटिंग इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन
And now these are the few things that are compulsorily to be entered in the formula, right? One more thing, when we write the formula, or this is what we call the syntax, right? In this case, you will see some things are there in brackets. So the things that are there in brackets, they are optional. That means even if I do not give any data for the brackets thing, then also it will compute the formula. So in this case, three things are compulsorily to be entered. That is rate, NPER, and PV. Future value and type are optional for me, right? So now let me explain to you all the three things. First is the rate. Rate is nothing but the rate of interest that you are talking about. So my rate is given in this cell. So I take the reference of this cell. Just a second. और रेट में मैंने रेफरेंस दे दिया B6 का, ठीक है. देन आई पुट अ कॉमा. अब वो मुझसे पूछ रहा है एन पर का मीनिंग है नंबर ऑफ पीरियड्स. लिख लो आप सब लोग. पर refers to periods and n refers to number. That means for how long your loan is going to, what are the number of periods, right? How many times you are going to make the payment. So in this case, since I'm making an annual payment, my number of periods is 15, right? अगर मैं हाफ ईयरली पेमेंट कर रही होती तो मेरे नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाते? इसी केस में 30. 30. 30, ठीक है. तो n per means number of periods and I've taken 15 my number of periods because right now I'm making an annual payment. Nothing is given in the question. So assuming that I'll be making an annual payment, my number of periods is 15, right? And then it asks you for the present value. Present value of loan मतलब at present आपने कितने का लोन लिया है. तो आपने 5,50,000 का लोन लिया है. Again, a very, very, very important point over here. You have to apply minus sign before selecting the present value. अगर आप माइनस साइन नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो नेगेटिव में शो करेगा. माइनस साइन हम इसलिए डिनोट करते हैं, इसलिए अप्लाई करते हैं बिकॉज माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज द अमाउंट टू बी पेड, right? It's a liability over us. So for that we have to apply minus sign before the loan amount. अभी मैं आपको माइनस साइन रिमूव करके भी इसका इफेक्ट दिखाऊंगी, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आई हैव टू राइट माइनस B4. एंड देन फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप आर ऑप्शनल. ऐसे मीनिंग बता देती हूँ. फ्यूचर वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी. ऑब्वियसली फ्यूचर में इसकी वैल्यू 0 मान के चलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं सारा लोन पे कर दूंगी. तो एट द एंड ऑफ दिस लोन पीरियड माय अमाउंट इज गोइंग टू बी 0. तो आप चाहो तो कॉमा 0 लिख सकते हो, बट एब्सोल्युटली नो नीड बिकॉज दीज आर ऑप्शनल. And then type refers to type are only two. It's either 0 or 1. Type इसलिए यूज होता है, it basically denotes the time period when you are making the payment. For example, you may make the payment at the beginning of the year or you may make the payment at the end of the year. तो उस हिसाब से वो 0 या 1 लेता है beginning और end के लिए. But again we don't need it for our computation. Even without that we can do the analysis. So I'm not writing future value and type. I just told you the meaning, what it represents, right? So now closing the थोड़ी तो टाइप में बिगनिंग में ही एंड में पे करे, बीच में भी तो कभी भी कर सकता है. हाँ, बट वो दो ही इसमें आते हैं ऑप्शन, 0 और 1. तभी हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कुछ भी नहीं लिया. वी हैव केप्ट इट एज इट इज. ठीक है. देन माँ, हाँ, क्या बोला आपने? यही कंफ्यूजन कि किसी भी टाइम पेमेंट हो सकती है, ये कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं लिया. ना 0 लिखा है ना 1 लिखा है. हमने सिर्फ फर्स्ट 3 कंपल्सरी एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए अपने फॉर्मूला में. ओके. ठीक है. तो एवरीबडी हैज सीन. कैन आई प्रेस एंटर? आप इक्वल GMT लिखोगे तो अपने आप फॉर्मूला वहां लिखा हुआ आ जाएगा. लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा PMT. Right now and I'm pressing enter. तो automatically you will see a dollar sign before the installment amount because वो समझता है कि ये रिप्रेजेंट करता है करेंसी, राइट? तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली वहां पे डॉलर साइन अप्लाई कर दिया.
अब देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन रिमूव कर देती हूँ, लोन अमाउंट से पहले अगर मैं माइनस साइन रिमूव कर रही हूँ, मैंने कर दिया ना, प्रेस एंटर, you can see that it is showing it in red and in brackets. Red and brackets means that it is a negative value. So this is very important point. You have to apply minus sign before your before writing your loan amount. मैम ये करेंसी में डॉलर है? हाँ, डॉलर ही, रुपी मेरे वाले में नहीं है। अगर आप पे रुपी आता तो आप ले लो। ओके। ठीक है, इनफैक्ट आपकी ये जो बाकी के भी है ना, आपका ये सारा जहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो, इसको भी आप करेंसी में ही कन्वर्ट करो, तो उससे क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर, एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा आपके बुक्स में। मैम आपने इसको कैसे किया करेंसी में? सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरल में ऑप्शन आता है ना, करेंसी। ओके। ओके, ऑल ऑफ यू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। मैम डन। ओके, ऐसे ही आप चाहो तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वल टू पीपीएमटी। राइट, ये देखो, रिटर्न्स द पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल फॉर अ गिवन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट्स। तो इस पूरे इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, रेट। इसमें एक ऑप्शन नया है, पर, दैट इज द पीरियड। पीरियड होगा जैसे 15 ईयर्स है, और अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो एन पर हो जाएगा 30। ठीक है, तो आप जो है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, गिविंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डेटा इन द फॉर्मूला। मैम इसमें एन 15 रहेगा ना दोनों में? इस केस में 15 रहेगा। ओके। यू कैन गिव द रेफरेंस। ये हो गया रेट, पर भी 15 है और एन पर भी 15 है, एंड देन द प्रेजेंट वैल्यू अगेन इन माइनस दिस, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। 72,000 में से इतना कंपोनेंट प्रिंसिपल का है, एंड इक्वल टू आईपीएमटी लिखोगे तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, रेट कॉमा पर एन पर कॉमा माइनस प्रेजेंट वैल्यू। You can see the remaining is your interest. आप चाहो तो एक बार मैं क्रॉस चेक भी करवा लेती हूँ, पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, you can see the answer is same, 72,310.58. एक बार पीपीएमटी का फॉर्मूला दिखाना। इक्वल टू पीपीएमटी लिखो, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। रेट पर और एन पर दोनों सेम है इस केस में, 15, एंड देन माइनस दिस अमाउंट। मैम जो ये साइड में इंस्टॉलमेंट है वो भी तो आपने फॉर्मूले से ही निकाली ना, कि इन हाँ, दोनों ये को तो प्लस करके फॉर्मूला से निकाला? निकाली थी, ये मैं आपको शो कर, ये इसमें मैंने आपको शो किया है कि देखो, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने हाँ प्रिंसिपल और तो इंटरेस्ट को ऐड करके दिखाया कि वही अमाउंट आ रहा है जो यहाँ आ रहा था इंस्टॉलमेंट। उसमें तो इक्वल टू और दोनों सेल को प्लस बीच में प्लस करके सिलेक्ट करना है ना सर? हाँ, ओके। वैसे क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना नहीं है, ये आप लोगों की नॉलेज पर्पसेस के लिए करके दिखाया। क्वेश्चन में तो बस मुझे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट चाहिए। मैम डन। ओके, I'm done. and one more thing, whatever formulas you are using, you are supposed to mention it in your answer sheets, in your answers। तो जैसे यहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट यूज किया है, तो यहाँ पे एक अलग से लिख दो फॉर्मूलाज यूज्ड।
और इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट लिखो कि आपने फॉर्मूला यूज किया है पीएमटी। जैसे ये तो बाद में अभी मैं रिमूव कर दूंगी, आप हेडिंग डाल दो यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज्ड। Can you please show again for PMT? यस आई डू इट, जस्ट अ सेकेंड। इसमें इंस्टॉलमेंट के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया है पीएमटी ब्रैकेट रेट एन पर एंड देन क्या लिखा हुआ था, अमाउंट ना, Present value. हाँ प्रेजेंट वैल्यू, वहां पे लिख दो। इक्वल टू मत डालना, इससे पहले जहाँ फॉर्मूला यूज लिख रहे हो इक्वल टू डालोगे तो उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो आपसे वैल्यूज मांगेगा कि रेट की वैल्यू दो, एन पर की वैल्यू दो। इक्वल टू हटा के यू कैन यूज द फॉर्मूला। यस, क्या बताना है, पीपीएमटी। Yes, ma'am. उसमें हमने लिखा इक्वल टू पीपीएमटी एंड देन आई टुक द रेट per and n per are same in this case, that is 15, and then the present value. Okay, ma'am. हो गया सबका? पीएमटी की फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म नहीं है, फॉर्मूला है पीएमटी। इन अ वे पेमेंट को का शॉर्ट फॉर्म है पीएमटी। और ओके लर्न करने के लिए इजी है, प्रिंसिपल है तो पी लग जाएगा पीपीएमटी, इंटरेस्ट है तो आई लग जाएगा आईपीएमटी, और नॉर्मल इंस्टॉलमेंट ओनली पीएमटी। ओके, कर लिया सबने यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट करवाऊं? यस मैम। ओके, एक चीज और जनरल नॉलेज के लिए, जैसे ये मेरी शीट है, राइट? इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट ऑल formulas have been used in my sheet, one way is that I go to a particular cell and see in the formula bar what formula has been used. But if, let us say, for the entire sheet I want to know what is the formula to be used, then in that case there is a function in Excel, that is you have to press control plus tilde together. Tilde is basically to the left of one, जहाँ पे आपका वन नंबर दिया हुआ है। कैन यू सी वन पे तो आपको वो दिया है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, वन के लेफ्ट में टैब के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है टिल्डे। आई शो इट टू यू मैम वो सिमिलैरिटी। हाँ, यू कैन से यस, सिमिलैरिटी वाला जो यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस उस बटन को इकट्ठे प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन में जहां जहां जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस टिल्डे अप्लाई किया, स्पेलिंग इज TILDE, राइट? आई ड्रॉ लाइन एंड आई शो इट टू यू। मैम हमें टिल्डे के अप्लाई करने के लिए हमें शिफ्ट भी दबानी पड़ेगी? नहीं, कंट्रोल प्लस से हो जाएगा। ये वाला साइन है, मैं भेज रही हूँ। सबका आ गया? कैन यू सी दिस? तो इस केस में पूरी जो स्क्रीन है आपकी वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगी। वैल्यूज नहीं दिख रही है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है, रादर फॉर्मूला दिख रहा है जो आपने अप्लाई किया है। ऐसे इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट में फॉर्मूला क्या यूज हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड नाउ आई एम प्रेसिंग इट अगेन, कंट्रोल प्लस दिस, तो अब वापस से मेरी शीट नॉर्मल शीट आ गई। मैम फिर से करने के लिए भी कंट्रोल प्लस टिल्डे ही करना है? यस यस यस। ओके। हो गया सबका?
Yes, ma'am. अच्छा, other than this, if you want to find out any information about a particular formula, जैसे अभी तो मैं समझा रही हूँ आपको, अगर मान लो आपको कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है कि इस फॉर्मूला में कैसे कैलकुलेशन हो रही है या इसका मीनिंग क्या है, तो अगेन फॉर दैट यू कैन गो टू फॉर्मूलाज, राइट, एंड इन दिस केस यू कैन गो टू इंसर्ट फंक्शन, राइट। इंसर्ट फंक्शन में करते ही आपको यू कैन सी दिस and you click on this and you find out formula. Let us say आप लिख दो यहाँ installment, right, and you click on go. Hmm. मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, तो इस केस में उसने मुझे ये सारे ऑप्शंस दे दिए कि लोन इंस्टॉलमेंट निकालने में ये अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं, राइट। तो बाय क्लिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, जैसे कि मैं पीएमटी पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे ये मेरे को इसका पूरा मीनिंग शो कर देगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मान लो इन केस आपको 1% फॉर्मूला याद नहीं आ रहा एग्जाम में कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, तो और नेट पे भी नहीं ढूंढ सकते इन केस, तो उस केस में आप यहाँ पे जाके फ्रेज कर दो कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वो आपको सारे ऑप्शंस दे देगा, राइट। इनफैक्ट इफ यू क्लिक ऑन हेल्प ऑन दिस फंक्शन, तो ये उसका पूरा डिटेल्ड आपको मीनिंग भी शो कर देगा कि इसका क्या मीनिंग है, ये कहाँ यूज होता है। यू कैन सी सिंटेक्स लिखा हुआ आ रहा है और फिर इसको पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी। इफ यू गो डाउनवर्ड्स, rate refers to the interest rate, n per refers to total number of payments, this is the present value, right, this is optional, the future value or cash balance you want to attain, it will be assumed to be zero, right, and then this is also type, which is again optional, number 0 or 1 and indicates when payments are due, right. So if you are making at the beginning of the period, you are writing 1. If you are making at the end of the period, you are typing 0. But again, it's optional, you can leave it. And then the remarks are given to you. और पूरा एग्जाम्पल तक दिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। ऐसे हर फॉर्मूला के लिए एक्सेल में ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके इंसर्ट फंक्शन में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो इन अ वे यू कैन लर्न बेटर अबाउट फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस ऑप्शन। Okay, coming back to my question. So now I have calculated the amount of installment. My amount of installment is going to remain the same because it has already taken into account the number of years, the time period, the loan amount. तो बस मुझे क्या करना है, इंस्टॉलमेंट का रेफरेंस देना है और उसको फिक्स कर देना है, क्योंकि हर साल amount of installment is going to remain the same. So I've just given the reference of installment and now I'm going to copy it till year 15 because it's going to remain the same every year. हाँ जी, जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा है ऊपर वो तो 6,500 कुछ है, बट जो हमारा आया है रियल में इंटरेस्ट वो 5,500 समथिंग आया, 55,000। 55,000 तो आपका वो एक्चुअली इंटरेस्ट एलिमेंट कम होगा ना, अभी धीरे धीरे कम होगा, ये इस साल का है। इसने जो कैलकुलेशन किया है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की, वो सारे सालों की मिला के एक एवरेज वैल्यू दी है। आपका भी ये वाला कंपोनेंट भी कम होगा क्योंकि अभी आपका ओपनिंग बैलेंस भी हम करेंगे ना इन सेल। यस, अगर सबका इतना हो गया तो नेक्स्ट करवाऊं। यस मैम। मैम एक्सक्यूज मी। यस, मैम अगर मैं करेंसी का ऑप्शन डाल रही हूँ तो मेरे में ना इंस्टॉल के नीचे हैश हैश लिखा आ रहा है। hash hash basically means that the cell is the width of the cell is less, ये ऐसे आ रहा है ना हैश हैश। तो हैश यस का यस मतलब मैम। क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एन एरर which shows that the width of your cell is less, you need to improve the width, so when you improve the width वो हैश हैश हट जाएगा। ओके मैम। Now installment column also I'm facing the same. Even I हाँ, have तो increased the width size. बढ़ा दो ना, width improve कर दो सेल की, ठीक हो जाएगा वो।
ठीक है। जब हो जाए तो बताना मुझे। डन मैम। ओके डन मैम। ओके। करें नेक्स्ट। यस मैम। ओके so next we find out the closing balance. Now your closing balance is equal to opening balance was the amount that you were supposed to pay initially, ठीक है, प्लस उस साल का आपको जो इंटरेस्ट पे करना था वो आप ऐड करोगे उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि इस साल का ये इंटरेस्ट ड्यू है तो आपको ये पेमेंट करना ही करना है, माइनस जो आपने उस साल पे कर दिया, तो दैट विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, opening balance represents the amount you were supposed to pay at the beginning of the year, ठीक है, to that you are going to add the interest that became due that year, so due हो गया इस साल interest 55,000 minus जो आपने installment pay कर दी, that is 72,310, and I'm going to press enter. So this gives me my closing balance for the year, ठीक है। और अब मैं इसको अभी ड्रैग कर देती हूँ नीचे, क्योंकि हर साल क्लोजिंग बैलेंस का कंप्यूटेशन ऐसे ही होगा। अभी ये फिलहाल ऐसे वैल्यूज शो कर रहा है क्योंकि अभी और कॉलम्स फिल इन नहीं हुए हैं, पर जब कॉलम्स फिल इन होंगे तो अपने आप ये इसको ठीक कर देगा। एनी डाउट इन द क्लोजिंग बैलेंस? नो नो मैम। मैम। Yes, all of you calculate closing balance. मैम मतलब अगर हमने फर्स्ट वाले में मतलब फर्स्ट सेल पे ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट सिलेक्ट किया है तो फिर मतलब अच्छा हमने फिक्स नहीं किया इसलिए वो चेंज होते रहेगा, लेकिन वो हाँ, ओपनिंग फिक्स क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा हर साल ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग इंटरेस्ट चेंज होगा ना। हाँ मतलब अगर हमने एक बार फॉर्मूला डाल दिया तो फिर वो दोनों सेल को ही लेके करेगा। हाँ, रिलेटिव रेफरेंसिंग जब आप एब्सोल्यूट नहीं कर रहे हो तो। ओके मैम। No, I have sent you a pic. Can you please help me with it? Just a second. फिक्स नहीं किया ना इंस्टॉलमेंट को आपने, जहाँ इंस्टॉलमेंट का रेफरेंस दिया था, इसलिए उसने वही ड्रैग कर दिया डाउनवर्ड्स और ओपनिंग बैलेंस और वो शो कर रहा है। Okay, ma'am. Thank you.
मैम डन। Okay. ये सबका हो गया. Yes, ma'am. Okay. Now you have to calculate the opening balances and the interest amount. Your opening balance is nothing but the closing balance of the last year, previous year. Yes or no? Yes, ma'am. So what I'm Yes, going to do, I'm going to write equal to, and I'm going to give the reference of the closing balance of previous year. done, ma'am. And press enter and drag it downwards. तो ऑटोमेटिकली वो पिछले साल का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसका रेफरेंस लेना स्टार्ट हो जाए कर देगा. Done. ओके. ओके, इंटरेस्ट पे चले फिर. Yes, ma'am. इंटरेस्ट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर ही दिया B6 को, और B10 को जो है हमने रिलेटिवली रेफरेंसिंग की है, तो बस इसको सिर्फ ड्रैग करना है मुझे डाउनवर्ड्स, एंड आई ड्रैग इट डाउनवर्ड्स. अल्टीमेटली योर लास्ट वैल्यू शुड कम आउट टू बी जीरो. जो लास्ट ईयर है उसका क्लोजिंग बैलेंस जीरो आना चाहिए. अगर आपका जीरो नहीं आ रहा मतलब कहीं गलती हुई. मैम एक बार और इंटरेस्ट वाला बता देंगे फिर से. वाला दोबारा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, जो पहले किया था वो उसको ड्रैग कर दिया मैंने डाउनवर्ड्स. मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले क्या डाला था, ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया था, बस उसको ड्रैग किया है डाउनवर्ड्स. ओके. I'm done. हम ओपनिंग बैलेंस का एक बार दोबारा बता दीजिए. इक्वल टू और रेफरेंस देना लोन अमाउंट का. फर्स्ट वाला पूछ रहे हो सेकंड वाला? ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंट है. सेकंड वाला मैम, मेरा कंट्रोल प्लस डी करने पे, डुप्लीकेट करने पे ना वो गलत आ रहा है सारा. ओके, तो कुछ भी नहीं करना, आपको लिखना है इक्वल टू और पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस का रेफरेंस देना है. मैम एक बार फर्स्ट वाला ओपनिंग बैलेंस वो तो डायरेक्ट लिखना है ना हमें, कि वो भी कोई फॉर्मूला था? वो इक्वल टू लिख के वो दिया था ना रेफरेंस, जहाँ पे लोन अमाउंट लिखा था. खुद नहीं लिखना लोन अमाउंट, क्योंकि कल को मान लो मैं इस लोन अमाउंट को चेंज करके कंप्यूटेशन करना चाहूँ, तो आप सीधा सेल का रेफरेंस दो ना. एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. सी दिस लोन अमाउंट इज लिंक्ड टू अमाउंट एंड डीपी, एंड दिस ओपनिंग बैलेंस इज लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ लोन. अगर मैं सिर्फ डीपी में चेंज कर रही हूँ 50,000 की जगह, इफ आई एम मेकिंग इट 1 लाख, you see all the calculations they change, because I have given references at so many different points. So try to make your sheet customizable, that in a way if I make change in one cell, automatically all other cells they get changed. ओके मैम, मतलब इक्वल टू को सेलेक्ट करना है. हाँ हाँ, करेक्ट हो गया. ठीक है. ओके, हो गया सबका क्वेश्चन कंप्लीट. Yes, ma'am. नाउ होमवर्क अभी अभी करो, इनफैक्ट नॉट होमवर्क. Your loan amount is, I'm writing over here, loan amount is 10 lakh. ठीक है, years are 12 and rate of interest is 8. Do the question fast. Do it, I'll be back in a minute. Huh? Ma'am, loan amount is 10 lakh.
मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। मैम डन। मैम Yes. डन। Okay. डन मैम। Done, Any ma'am. doubt to anyone? नो मैम। Okay, it's not yet complete. मतलब ये वाला portion तो complete है, but it is just the basic of loan and lease statement. So next Thursday we are going to do the next step. We have two more steps after this, two more levels of difficulty. This was the basic one. ठीक है?
तो प्लीज प्रैक्टिस इट, जैसे थर्सडे को है तो ट्यूसडे वेंसडे अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना. आई विल नॉट गेट बैक टू इट, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप. ओके, होमवर्क लिखो फटाफट. Prepare loan and lease statement. Prepare loan and lease statement in the following case. A Limited bought a new machinery for rupees 25 lakhs. A Limited bought a new machinery for rupees 25 lakhs after making a down payment of 3 lakh. After making a down payment of rupees 3 lakh for 20 years, at 12% rate of interest. At 12% rate of interest. मैम लोन अमाउंट कितनी है? लोन अमाउंट था 25 लाख टोटल लिया था उसने, का लिया है 3 लाख डाउन पेमेंट कर चुका है, एंड रिमेनिंग इट गॉट फाइनेंस्ड फॉर 20 years at 12% rate of interest. हम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. टोटल 25 लाख का लिया उसने मशीनरी, 3 लाख डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, और आपका टेन्योर है, टाइम पीरियड है 20 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर annum. ओके मैम. Okay, now I'm taking the attendance. एक minute. Yes, Anubhav. Present, ma'am, present. Okay, Shivangi. Present, ma'am. Arjun. Present, ma'am. Janvi. Present, ma'am. Vidit. Priyanshu. Present, ma'am. Shubham. Present, ma'am. Samyak. Lavanya. Aryan. Present, ma'am. Himanshi. Achal. Present, ma'am. Okay. Aishna. Riya. Gitanjali. Present, ma'am. Simran. Abhishek. Devika. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay. Then Shreya. Akansha. Shubham. Kritika. Present, ma'am. Okay. Then Muskan.